Good morning, friends, and welcome to my channel. And it's a beautiful day as usual. These days, I'm using the word beautiful because it's actually beautiful, and the outdoor shoot is amazing. Trust me. And please go out in the nature. अगर तुम्हारे पास कोई garden है ना, please move your ass sometimes and sit there for 5-10 minutes. 20 minutes instead of wasting your time on useless activities and with useless people. गार्डन में जाके बैठ जाओ और जस्ट लुक इनटू स्पेस सीरियसली. It's been a wonderful day, and another thing I would love to say is that अगर तुम लोग की कोई भी ऐसे topics है which you all want me to cover up और कुछ you all want me to speak on, please be respectful. ऐसा नहीं है कि just do it. मैं सरकारी नौकरी, मुझे सरकार पगार नहीं देती है. So be respectful, be kind, be polite, and be matured enough to understand कि what is the content. Okay, don't just request something which doesn't match the content or the channel or something of that sort. So be very respectful about the whole thing. Oh my God, यहाँ पे ना एक केटरिंग का ये है, और एक्चुअली यू कैन सी दिस बिल्डिंग केटरिंग एक्चुअली खुशबू आती रहती है. इतना प्यारा मौसम, हल्के हल्के से ये हवाएं चल रही है. यू कैन एक्चुअली सिंग अ बॉलीवुड का गाना हो here. These days I'm keeping my content more as a vlogging, and I have not given any titles because it is a very पहले भी spontaneous रहता था, but I would put a lot of thought in it. I would pick up very complicated subjects which are very difficult to explain without any graphics or something of that sort. These days it is more on a personal level because in these 4 years I never really shared anything personal, क्योंकि ऐसे कुछ शेयर करने लायक होता भी नहीं था. It's general घर घर की कहानी, हर घर में ऐसा होता है. And if any of the YouTubers, influencers, celebrities, स्पोर्ट्स पीपल और तुम्हारे बॉलीवुड के एक्टर्स, पूरा कैटेगरी बॉलीवुड, or your politicians pretending that they're having a fabulous life and they are clicking pictures, selfies with their wives and children and husbands. मैंने ये टीवी सीरियल्स की फीमेल्स को देखा है, जैसे वो अस्पताल में जाती है, दे आर डिलीवरी बच्चे के 10 मिनट नहीं हुए हैं एंड दे आर जस्ट क्लिकिंग पिक्चर्स एंड इट इज़ ऑल ओवर सोशल मीडिया. Certain things are very very private. जैसे I have seen females talking about their abortion on social media. These are very private subjects which a woman should keep it private. Or sometimes they give about their gynec problems, which is also another very personal things. Like, okay, I know females are also watching, 22% of them, what I want to say, and males are also watching. These gynec problems is nothing to shy about, but the problem is that when people go overboard with their pregnancy stories or their delivery stories or whatever kind of stories, so बहुत ज़्यादा dramatic लगता है and sensational, because these are personal matters, right? अभी मैं एक एग्जांपल दूंगी. जैसे अभी एक प्रोडक्ट बेचने के लिए, पैड्स बेचने के लिए, वो पीरियड्स को ग्लैमराइज करते हैं, सेंसेशनलाइज करते हैं, दे मेक इट वेरी एक्साइटिंग, जबकि ये दूर दूर तक बिल्कुल ही एक्सपीरियंस एक्साइटिंग नहीं रहता है. Trust me, as a woman, I can speak for it, and it is no fun wearing white clothes and prancing about when you are like literally dying from within and all your insides are bleeding. And trust me, it is a horrifying experience because there's so much of hormonal changes. तुम इतने क्रैंकी बन जाते हो, तुम इतने चिड़चिड़े बन जाते हो, तुम्हें सॉल्टी चीज़ें खाने का मन करता है, तुम्हें शुगरी चीज़ें खाने का मन करता है. देन यू आर ओवर एक्साइटेड बिकॉज यू आर बेबी मेकिंग, योर एग्स आर बीइंग ओवुलेटेड. तो वो ओवुलेशन के पीरियड में तुम इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, सो योर सेक्शुअल ड्राइव इज़ ऑल्सो वेरी हाई. That is a fact. So when they glamorize to sell products, जैसे एक प्रेगा न्यूज़, जैसे प्रेग्नेंट नहीं बनने के लिए, I think there's this Prega news, right? You can come to know about that stuff. मैंने बोला क्या लोग इतना ज़्यादा सेक्स करते हैं कि सेक्स इज़ फॉर प्लेजर एंड बेबी मेकिंग, नो डाउट. बेसिकली वो बेबी मेकिंग के लिए ही था, बट ऑन द जर्नी वाइल बेबी मेकिंग,
यू कैन हैव प्लेजर ऑल्सो, मतलब मज़े कर करके सेटिस्फैक्शन ग्रेटिफिकेशन लस्टिफिकेशन होने से तुम्हें बच्चे भी पैदा होते, बिकॉज इफ़ यू डोंट प्रोड्यूस दैट हीट इन ईच एंड अदर्स बॉडीज़, फिर वो देर इज़ नो movement of egg and sperm. I hope you understand, both the bodies have to be on equal pages to create babies. So I don't know, even sex को इतना ज़्यादा glamorize किया है कि actually it looks more of an activity than a kind of a natural production process. I hope you understand. I am using I'm being very frank and I'm using very adult themes while speaking, because हम लोग अभी छोटे बच्चे नहीं रहे कि हर चीज़ में हिपोक्रेसी का सहारा लेके संस्कृति और संस्कार, मैंने बोला इंडिया संस्कृति और संस्कार का इतना ढोंग करता है, और इट्स द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द होल वर्ल्ड। काय की संस्कृति, और यूपी में तो देखो भाई, आई थिंक इट द नंबर 1 पॉपुलेशन है, और वहाँ के भोजपुरी मूवीज़ तुम देखो यार, वो औरत को इतना ऑब्जेक्टिफाई करते हैं कि उसके वो ना भैंसी जैसी हीरोइन होती है, इतने बड़े बड़े बूब्स में भी 40-42, और उसका जो कमर होता है वो इतना बड़ा रहता है, उसके बूब्स, उसके जो पॉस्चर, क्या बोलते हैं उसके, आई डोंट वांट टू यूज़ अ हिंदी वर्ड एंड साउंड वेरी क्रूड, बट इट इज़ लाइक बट्स कुड बी द थिंग, इट्स सो बिग, इट इज़ लाइक अराउंड वॉट, so and they're always showing their cleavage and they're falling over a man, pati, and they are always focusing on the pleasure between a man and a woman, or whenever a woman wears short clothes they have to have fantasies about her, but when she's doing household jobs like उसके पति के पैर दबाएगी, खाना बनाएगी एंड बच्चे पैदा करेगी, हमेशा इस प्रेगनेंसी के ऊपर ज़्यादा ही फोकस है। पूरी दुनिया उनके साथ, पूरी माल मसाला, मतलब वो जो दादर स्टेशन जैसा सारे कैरेक्टर्स फ्रॉम हम आपके है कौन टाइप, यू नो, सास भी कभी बहू टाइप ऑफ सीरियल जैसा सारे लोग हैं, और फिर वही रबिश पना रहता है। देन ही स्लैप्स द वुमन, बीट्स द वुमन, हाउ वुमन इज़ ब्रेकिंग अप द हाउस, षड्यंत्र करती है। सो ये ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन इन द मीडिया इज़ सो बैड, स्पेशली ये जब रूरल लोग देखते हैं, जब वो औरत को देखते हैं, उनको एक ही दिखता है, बूब्स, क्लीवेज, वजाइना, बिग बट्स, वही दिखते हैं कि सेक्सी करना है। दैट्स द रीज़न वाई दिमाग के अंदर आदमी के यही भरा हुआ है, जबकि ये चीज़ नहीं है। एक औरत भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके भी कुछ उसका भी एक कैरेक्टर है, पर्सनालिटी है, उसके भी ओपिनियंस है, वो भी एक ह्यूमन, I hope you understand, a living, breathing human being है, who has got respectable boundaries. But when you objectify a woman constantly through media, मैंने देखा है कि ये चोचलेपना चल रही है, even in the western media, वो तुम बिकिनी में, 24 घंटे तुम बिकिनी में कैसे रह सकते हो ऐसे? I don't think so. I mean, it is so uncomfortable. I remember wearing a swimsuit maybe once or twice and I was feeling so uncomfortable. वो भी पूरा ढका हुआ फुल वन पीस का, and I hate swimming pools। तो मैं वेकेशन पे थी दिस लवली रिसॉर्ट पे, मैंने बोला चलो यार पूरी जन डुबकी लगा रहे हैं, मैं भी जाती हूँ। ट्रस्ट मी, मुझे पसंद नहीं आया। इवन व्हेन आई वाज ऑन अ बीच ना, मुझे बीच बड़ा पसंद आता है, आई वुड लव टू बी ऑन अ बीच। मैं पैर भिगा लूँ ऐसे पूरे, नहा लूँ, लाइक यू नो, टी शर्ट शॉर्ट्स में, बट वो मुझे नहीं समझ में आता है कि तुम, I don't know, maybe it is about me, not that I'm trying to behave very traditional or something, but I was very uncomfortable though when they show these Bollywood actresses in bikinis and two pieces and इतनी छोटे छोटे, first and foremost they're flat chested, okay, फिर वो padded bras पहनते हैं, फिर वो बहुत ही अजीब से एंगल से उनको शूट करते हैं, मतलब वो सेक्सी लगने के बदले वो कुछ अजीब सा ही लगता है। वुमेन्स बॉडी हैज़ कर्व्स, गाइज, मैन हु आर वॉचिंग, यू कैन नॉट हैव अ फ्लैट बोर्ड। अगर तुम फ्लैट बोर्ड किसी को देखते हो, वुमेन्स बॉडी नीड्स टू हैव फैट बिकॉज शी इज गोइंग थ्रू पीरियड्स एवरी सिंग, अ बॉडी इज डिजाइन फॉर बेबी मेकिंग, फॉर प्रोडक्शन, सो देर इज बाउंड टू बी फैट ऑन हर स्टमक, देयर इज बाउंड टू बी फैट ऑल ओवर द बॉडी। अगर तुम पतले सुकड़े किसी कैरेक्टर को देखते हो तो मतलब ये एक गलत इमेज है। दिस इज एब्सोल्युटली a wrong image of a woman. Today I'm going to be very very particular. जब तक मैं होर्डिंग्स देखती हूँ ऑल ओवर बॉम्बे और वो डिज़ाइनर कपड़े में इतनी अगली फीमेल्स, इतने चपटे शार्प जॉ लाइन्स, वुमेन डजंट हैव शार्प जॉ, उसको सब क्यूटनेस फैट रहता है ऑल ओवर द बॉडी,
स्पेशली ऑन द फेस ऑल्सो दे आर लिटिल चबी, यू नो. अगर अभी मेरी एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मैं आई एम जस्ट 58 kgs एट द मोमेंट, एंड व्हेन आई वाज 54 kgs आई लुक वेरी sickly and very ill. Okay, and I didn't have any stamina, so I'm trying to build up at least 60 kgs because मेरे heights के हिसाब से, because I'm 5'11", so I need to have that 60 kgs so that overall it looks, not because it looks good, because it is a healthy weight. And I'm telling you, when I was 50 to 54 kgs lately, 2-3 months ago, I was always exhausted. A lady becomes extremely exhausted. तो ये फीमेल्स का चक्कर है, पतला बनना है, पतला बनना है. आजकल क्रॉप टॉप देख रही हूँ, सब लोग अपनी बोमली दिखा रहे हैं, अपने वो अम्बिलिकल कॉर्ड का वो दिखा रहे हैं केंद्र बिंदु. That is very sexually inviting, right? You will see all the choreography. The आदमी will always kiss over there, ऐसे रेंगता हुआ. वो लेडी साड़ी पहनेगी, and that Bollywood guy actor will always be ranging over her stomach, I could say, which is absolutely disgusting and crude. हमारी कोरियोग्राफी जो बॉलीवुड की होती है वो भी इतनी चूतिया जैसी रहती है ना. सीरियसली ऑब्जेक्टिफाइंग फीमेल्स. कितना गुस्सा आता है कि क्यों हम फीमेल्स को इतने छोटे तबके में दिखाते, जैसे हम कोई कैटल है, जैसे हमारी अस्तित्व सिर्फ हमारे बूब्स और बट्स में ही है. एंड दिल ऑलवेज शो फोकस ऑन द बट्स. यू सी दिस पंजाबी सॉन्ग्स, एक आदमी कैसे लस्टफुली एक औरत के पीछे भागता है जो इतना ज़्यादा मेकअप करती है, इतने लंबे लंबे नेल्स होते हैं, इतने बड़े बड़े, शील भी लाइक शॉपिंग कराना है. मैंने बोला और कोई ज़िंदगी में और कोई काम नहीं है, बस शॉपिंग करना है और सेक्सी करना है. सो गाइस प्लीज़, आई थिंक कि मीडिया का भी है, और हमारी पेरेंट्स, हमारी जो औरतें हैं, औरतें ही औरतों का दुश्मन होती है. वो इतनी हरामी कैरेक्टर्स होती है औरतें भी. they do not respect themselves, they do not respect other females also. I'm not here to summarize. When I see young girls na, when I was also young, मैं भी tight कपड़े पहनती, but I was very thin. I was like 54 kgs. तो क्या होता था ना, पतला person tight कपड़े पहनता, tight t-shirts and jeans. I was always a jeans and t-shirt person. Later on I became a t-shirt person. And when I was working, I used to always wear kurtas. So back then also, because it was very comfortable, and I had to deal with a lot of male colleagues. अभी तुम male colleagues के साथ रहते हो तो you have to be very mindful, क्योंकि वो उनके हिसाब से सोचते हैं. वो ये नहीं सोचते हैं कि they take you one of the buddy guys, you know. और कुछ भी ऐसे बकवास करते रहते हैं. सीरियसली समटाइम्स आई हैड टू टच कंप्यूटर्स एंड ऑनलाइन पॉर्न मटेरियल निकलता था. तो मैंने एक आध को बोला, यार भाई तू अपने घर में देखा, या घर में देखा कर, या तो छुप के देखा कर. अब you cannot be shouting and screaming on such things, right? जो porn is another dirty thing. porn से ऐसे अनरियलिस्टिक बॉडीज, अनरियलिस्टिक योगा पोजेस होते हैं, जिम्नाजियम होता है, एक्रोबैटिक्स होता है. ये नहीं होता है ऐसे. इतना ज़्यादा फोकस, चीज़ें नेचुरली होनी चाहिए. पैशन हैज़ टू बी नेचुरली. तुम किसी से प्यार करते हो ना, वो चीज़ें नेचुरली होती है. उसके लिए लॉन्जरी पहन के, परफ्यूम लगा के, वो कैंडल जला के, पेटल्स, वो इतना हार्ड वर्क नहीं होता है. it's instant, it's beautiful. मैंने बोला, I think people should focus on spontaneity rather than doing all this नाटक नखरा of wearing those uncomfortable lingeries and looking like almost like a clown. क्योंकि वो क्या होता है ना, विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल्स पे, क्योंकि दे आर कार्डबोर्ड कटआउट्स, कैरिकेचर्स ऑफ रियल वुमेन. ऐसे कोई इतनी टॉल, इतने लंबे लेग्स, और वो दो पीस में विंग्स के साथ आती है. इतना फनी लगता है. बट मैन गेट, दे आर लस्टिंग. मैंने बोला दे आर लस्टिंग फॉर दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. इमेजिन, एक औरत की बॉडी को ही डिस्टॉर्ट किया गया है मीडिया में. फिर तुम क्या, मतलब एक औरत ही औरत को एक गंदे हरामी की तरह ट्रीट करती है. एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है. आई एम रियली टेलिंग यू, आई हैव सीन वुमेन बीइंग बिगर बिचेस देन मेन, like literally. So that's the way it is, and I think women should stand up for themselves. मैं ये नहीं बोलती, कभी कभी let me not be a hypocrite while I'm saying this. जब मीडिया में दिखाते ना कि एक गुड लुकिंग बॉस एक औरत के साथ फ्लर्ट करता है, we women, unless and until he's really chichora, we like to be around good looking men.
जिसकी बॉडी अच्छी है, जो स्टाइलिश कपड़े पहनता है, ही इज़ वेरी वेल केप्ट, वेल ग्रूम्ड, एंड इफ़ ही डज टची फील, ये हमें अच्छा लगता है सीरियसली। उसमें से डोंट टच मी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये कहाँ से आ गया? ये नहीं आता। ये मीडिया हमें टू हेट मैन, वो ये सारी चीज़ें करती है, बट वी वुमेन लाइक इट। जैसे मैन लाइक वेल ग्रूम्ड, क्यूट लुकिंग, प्लेजेंट लुकिंग, हाइजीन में रहते हैं। इवन फॉर वुमेन लाइक हाइजीनिक मैन, हाइजीनिक वुमेन जो दिखने में अच्छी है। मैं बोल सुंदर ही नहीं, बट अट्रैक्टिव है, बबली है, लाइक काइंड एंड लविंग है। जैसे एक लड़का है, जेनरस है, केयरिंग है, तो उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कहाँ से आ गई? मैंने देखा बॉलीवुड में औरतें हीरो को थप्पड़ मारती है व्हेन ही गोज टू हेल्प हर और समथिंग, देन शील से मैं मुझे माफ़ करो, सजा दे दो, एंड ऑल दिस इडियोटिक थिंग्स विच आर हैपनिंग, विच इज़ एब्सोल्युटली स्टूपिड। वी आर प्रोग्राम टू हेट men. Of course we are program, and men are programmed to hate women and just use them and abuse them. So it's both the ways. This is very disgusting trend which is happening to disrespect both the genders. I've seen men putting down women, women disrespecting men and everything. हर चीज़ में उनको, अब एड्स में देखो, सीरियल में देखो, they have to show that they are the clever one. नहीं, वी ऑल्सो हैव आवर फॉल्ट्स, एंड द मैन विल बी दिस डमी गाय कि वो लस्ट में आके पूरा क्रेजी हो जाता है. आई थिंक देर आर वेरी फ्यू, आई हैव येट टू सी अ मैन कि वो विश्वामित्रा तक पिघल गया था एक औरत की सुंदरता पे. मैंने बोला तू चीज़ क्या है. सो एवरीबडी वॉन्ट्स प्लेजेंट कंपनी, एंड ऑपोजिट जेंडर से हमें बैलेंस मिलता है. प्लीज़ डोंट लुक डाउन अपॉन men or women and try to appreciate and enjoy their company. अच्छा, फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पॉज मारती हूँ. in the sense I will thank you so much for listening, and please give me your feedback. Thank you.